یہ عوام کا منتخب کردہ پارلیمان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب دی گئی پارلیمنٹ؟ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں ہارنے والے بھی مطمئن نہیں، جیتنے والے بھی پریشان ہیں؟ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، انتخابی دھاندلی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان، کہا 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا، ہمیں روکنے کی کوشش کرنے والا خود مصیبت کو دعوت دے گا۔ الیکشن میں زیادہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں، شہباز شریف اور بلاول حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دیں۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے لیکن ہمیں انکار بھی نہیں، جلسہ کرنا تحریک انصاف کا آئینی اور قانونی حق ہے، انتظامیہ انہیں اجازت دے۔ اس ملک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا کوئی کردار نہیں، ہم اپنی مرضی سے قانون سازی نہیں کر سکتے، ہم اپنے ماتحت کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں فیصلے وہ کریں اور منہ ہمارا کالا ہو، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ تھا جسے پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سابق اسپیکر اور تحریک انصاف کے رہنما آصف قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بتایا جائے کیا ملک میں آئین معطل ہے، کیا یہ ملک آزاد ہے یا یہاں مارشل لا لگا ہے۔ اس وقت ملک کے 3 وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور محسن نقوی۔ سارا اختیار محسن نقوی کے پاس ہے، وہی اقتدار کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، کس قانون کے تحت ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ ہم ملک میں سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو مضبوط آئین و قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے مسترد شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آصف قیصر کے ریمارکس پر ایم کیو ایم کے اراکین کا شدید احتجاج، سابق اسپیکر کا کسانوں کے احتجاج کی حمایت کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک سے متعلق کیس، پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے کے متفرق درخواستیں 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو شرمندہ کرنا ہے۔ کس نے ان کو درخواستیں دائر کرنے کی اتھارٹی دی؟ کس طرح 6 ججز کا خط ایف آئی اے سے متعلقہ ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو خط کا متعلقہ حصہ پڑھنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے جو الزامات ہیں اس عدالت کے ججز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے؟ اگر ایگزیکٹو ججز کو بلیک میل کرے تو کیا ججز کا مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے گا؟ اس کی ہدایت پر متفرق درخواست دائر ہوئی۔ آئی بی سے جواب طلب کر لیا گیا۔ اعتزاز احسن بھی پیش ہوئے، کہا کہ خوشی ہے کہ ججز بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا، عدالتی اقدام سے میرا قد 20 فیٹ اونچا ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس، سپریم کورٹ کا 6 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس میں 9 مختلف درخواستیں۔ ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے، قرضوں کا جال موت کا پھندا بن گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا، سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، دنیا کی طرف سے امداد کے بجائے قرض دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہوا، عالمی منڈی میں مہنگائی سے چھوٹی معیشتیں متاثر ہوئیں، سعودی عرب نے مشکل وقت میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا، غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مزید کہا میرے مرحوم والد اور چچا غریب کسان کے بچے تھے، میرے مرحوم والد نے انتہائی محنت سے 1965 میں اسٹیل انجینئرنگ کمپنی بنائی، 2 جنوری 1972 میں وہ اسٹیل کمپنی نیشنلائز ہوئی۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا پارا ہے، کسانوں کا لاہور میں مال روڈ پر احتجاج، پنجاب اسمبلی کی طرف جانے کی کوشش پر پولیس کا لاٹھی چارج، 30 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے سیل، مختلف شہروں میں بھی مظاہرے، کئی کسانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسان بورڈ پنجاب کے صدر عبدالرشید اور شیخوپورہ بورڈ کے صدر صفدر ورک بھی پکڑے گئے۔ دیگر علاقوں میں بھی کسان رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ کسانوں کا مطالبات کی منظوری تک حکومت سے بات کرنے سے انکار۔
किसानों के खिलाफ हुकूमती एक्शन पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर ओन अब्बास कहते हैं खेतों में गंदम बर्बाद हो रही है, किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान में 46 लाख टन गंदम मौजूद थी जब यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई। निगरान दौर में कोई फ़ायदा उठा रहा था, किसी ने 85 अरब रुपए कमाए। किसानों के मुजाहरे की पंजाब असम्बली में भी गूंज। अपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती, गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं हुकूमत गंदम की खरीदारी में संजीदा नहीं, गंदम की खरीदारी के लिए इमरजेंसी लगाई जाए, फ्लोर मिल्स और आड़तियों को गंदम ना बेची जाए। सितंबर में गंदम की इंपोर्ट की इंक्वायरी कराएं, निगरान वज़ीर आज़म गंदम स्कैंडल में मुलव्वस होंगे। किसानों के नाम पर किसी को सियासत नहीं चमकाने देंगे। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब बजना बुखारी का कहना है एक मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। हमारे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने वाले भी मौसमी किसान बन चुके हैं, किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ारती कमेटी की सिफारिशात तैयार। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। 6 एकड़ से बढ़ाकर 12 एकड़ वाले किसान को भी पॉलिसी में शामिल करने की तजवीज़। फी एकड़ 6 बारदाना देने की सिफारिश। 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की सिफारिश। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। किसी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैंडेट दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को भी मैंडेट दिया है। चेयरमैन पीएसी पर मुशावरत जारी है। शेर अफजल मरवत का नाम भी शामिल है। कल तक हतमी नाम का ऐलान कर देंगे। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं को वापस लेने का फैसला बानी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला के कहने पर पुलिस गर्दी की जा रही है। कौमी असम्बली में करारदाद लाएंगे। इनके सरबराहान को असम्बली में बुलवाकर जवाब तलब करेंगे। मोहसिन नकवी से भी असम्बली में ही जवाब लेंगे। उधर यौम तासीस पर रैली निकालने पर मुकदमा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की जमानतें मंजूर। डील से मुतालिक कोई बात मेरे इल्म में नहीं, जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पासपोर्ट के इजरा में ताखिर बद इंतजामी है, कुछ मिसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बद इंतजामी और रिश्वतखोरी की इतलात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। नाकिस इंतजामात और मुबैना रिश्वतखोरी पर पासपोर्ट ऑफिस के 2 ऑफिसर्स मुअत्तल कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस मोबाइल सहूलत सर्विस और ITP मोबाइल एजुकेशन सर्विस का इफ्तिताह किया। बोले तलबा और तालिबात के लिए लाइसेंस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बनेगा। इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों को घर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने तहरीक इंसाफ का सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा अफसोसनाक करार दे दिया। कहती हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की खातिर PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात और मुफाहमत की दावत दी। PTI एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार की शिकायत करती है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मुतालबा करती है। इदारे कहते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी जमातों को पार्लियामेंट और सियासी डायलॉग का सहारा लेना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ फिर से माजी को दोहराना चाहती है? वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की तरफ देखे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का PTI को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा। एक पैगाम में साहिबजादा हामिद रजा का कहना है बानी को इंसाफ नहीं मिलता तो PTI सड़कों पर निकले। PTI क़यादत हुकूमत को मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम दे। 3 से 8 हफ्ते का वक्त देकर एहतजाज का लाहे अमल बनाया जाए। मैं बानी चेयरमैन के लिए इस्तीफा देने वाला पहला शख्स हूँगा। लोगों ने हमें मौजूदा हालात में सिर्फ असेंबलियों में बैठने के लिए वोट नहीं दिए। असेंबलियां मामूल के मुताबिक चल पड़ी हैं। जारहाना तर्ज अपनाने वाली ओपोजिशन भी मौजूद है। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब अहम ओहदों पर मेरिट पर ऑफिसर्स की तकर्री यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। मरीम नवाज ने कई घंटों तक मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। मरीम नवाज का कहना है फेवरेटिज्म और सिफारिशी कल्चर की हौसला शिकने के लिए अहम ओहदों पर तैनाती के अमल की मॉनिटरिंग खुद करूंगी। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर तैनातियां होंगी। गुड गवर्नेंस के लिए राइट पर्सन इन राइट प्लेस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराऊंगी। नाअहल और करप्ट ऑफिसर्स की खैर नहीं, जो डिलीवर करेगा वही ओहदे पर रहेगा। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज ने डेनमार्क के सफीर की मुलाकात, पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तफाक किया। एनर्जी, सेहत, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, कार्बन क्रेडिट्स और दीगर अमूर में ताउन के फरोग का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, एनर्जी के लिए मुकामी वसाइल पर इन्हसार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर बातचीत, फरीकैन का बाहमी तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तुर्किया के कमांडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्किया के कमांडर की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते का तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उधर ऐवान सदर में तुर्किया के बर्री अफवाज के कमांडर को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के कमांडर को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। कौमी असेंबली से टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत। अपोजिशन रुकन अवैस हैदर झक्कर ने टैक्स कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ात सुने बगैर बिल मंजूर करने पर कोरम की निशानदही कर दी। गिनती करने पर कोरम पूरा निकला। अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। बिल में ज़ेब जाफर और बैरिस्टर अकील मलिक की तरामीम भी मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद कौमी असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% पर रही। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 60 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। जुलाई से मार्च तरसीलात ज़र 9.3% से बढ़कर 21 अरब डॉलर पर पहुंच गईं। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है, मुस्तकबिल में मजीद कम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को मुसल्लत करने वालों से कौम हिसाब मांगेगी। हुकूमत अमेरिका के कहने पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं बना रही। गैस के बहरान की वजह से सनतें नहीं चल पा रहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तानी हुक्मरानों के असासे अमेरिका में हैं, ये पाकिस्तान के हक में कैसे फैसला कर सकते हैं। जब तक इदारे आईनी हुदूद में नहीं जाते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत अपनी गलत और नाकाम ज़रई पॉलिसी की इस्लाह के बजाय फस्तायत पर उतर आई है। किसान लावारिस नहीं हैं। जमात इस्लामी कल पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। MKM रहनुमा अली रजा आबदी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब्दुल हसीब गजाली, मोहम्मद फारूक, अबू बकर को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। कौमी टीम के कोचेस का टीम को कामयाबी से हमकिनार करने का अज़म। जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, ये खेल के हर हिस्से को जिस्मानी और जहनी तौर पर जांचती है। चाहता हूँ पाकिस्तानी टीम इसी अंदाज की खेले और जो इनके मुताबिक हो। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को इस तरह से मुतहर्रिक कर सकूँगा कि उनकी बड़ी सलाहियतों को मैदान में पेश किया जा सके। चाहता हूँ टीम की कामयाबी के लिए सब एक ही समत में सफ़र कर सकें।